Hello everyone. Now let's start with the first topic of Environment Law, Unit 1, Environment, Meaning and Concept. So, beginning with the meaning of environment. The term environment originates from the French word environneur, meaning to surround. It encompasses all living, biotic and non-living components that interact and influence. So basically इसका मतलब ये होता है that environment is nothing but a combination of two things, that is living as well as non-living components. Living like human beings and non-living like anything like table, chair, everything consists of the environment. Next, the environment includes physical, chemical, biological factor that provides life supporting resources and conditions. So basically it plays a crucial role in the earth's ecosystem. So जो भी हम बहुत important role play करता है environment में वो होती है हमारा ecosystem. Ecosystem actually sustains life. So ecosystem comprises of the environment. Next is the definition of environment. So there are two kind of definition, that is one is the broader definition and next is the legal definition. So in broader definition it means that environment refers to the surroundings or conditions in which an organism, community or object exists. It comprises all external factors that influence the survival, development and evolution of life. In simple words, it basically means that environment relates to surroundings. हमारे surroundings में हम जो कुछ भी देखते हैं like tree, plants, herbs, shrubs, houses, evolution, development, everything consists of the environment. Now अगर हम legally देखें, as we are in a legal field, तो legal definition है mentioned हमारी section 2A of Environment Protection Act 1986, also called as EPA. So the environment includes water, air and land and the interrelationship which exists among and between water, air and land and human beings, other living creatures, plant organisms and property. So अगर हमें इसको अच्छे से याद करना है तो इसको हम बहुत easily simple language में use कर सकते हैं. That basically environment means water, air and land and the interrelationship between the water, air and land with the human beings or other living creatures. It is as simple as that. Next, we go move ahead with the components of environment. So there are three components of environment, that is natural environment, human made environment and social and cultural environment. So beginning with the natural environment, इट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी. एबायोटिक में हमारे नॉन लिविंग लाइक एयर, वाटर, सॉइल, ट्री, टेम्परेचर, एवरीथिंग कम्स अप. एंड इन बायोटिक इट कम्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Next comes up with human made environment. So structures and developments like buildings, roads, dams, industries, these are some kind of in developments that are made by human. हमने बनाई है, we as man we have created these things. ये भी हमारा environment है because हमने अभी पढ़ा that environment means surroundings. So surroundings में हमारा animals, plants, trees, air, water सब आते हैं. तो buildings, roads, dams, construction work, sewage, railings, everything that comes up is a human made environment. Now next, beginning with social and cultural environment, human interactions, traditions and social norms that influence the lifestyle. इसका बेसिक एग्जाम्पल हो सकता है like गोइंग टू टेम्पल या फिर कवरिंग दी हेड्स या फिर डूइंग नमस्ते. इट इज़ बेसिकली अ सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. जो हमारा सोशल बिहेवियर है, दैट वी कनेक्ट विद द पीपल, इमोशनल कनेक्ट है जो हमारे साथ, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. Yes, so moving ahead with the concept of environment. So there are various perspectives. इसको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन. लाइक देयर इज़ अ होलिस्टिक परस्पेक्टिव. मैं आपको हिंदी में सिंपल भाषा में बता देती हूँ. होलिस्टिक परस्पेक्टिव मतलब होता है रिलेशनशिप क्या होती है ऑर्गेनिजम्स की, सराउंडिंग्स की. मतलब टू मेंटेन बेसिकली अ बैलेंस. एक बैलेंस बनाने के लिए इन्वायरमेंट एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है ह्यूमन्स की, सराउंडिंग्स की. उसको हम कहते हैं होलिस्टिक परस्पेक्टिव. नेक्स्ट वी कॉल इज डायनेमिक सिस्टम. डायनेमिक मतलब जो इन्वायरमेंट है वो स्टैटिक नहीं है. स्टैटिक मीन्स वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता है, वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होता है. फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, दे कंटिन्यूसली कीप्स ऑन मूविंग. नेचुरल प्रोसेसेस है, ट्रीज कीप्स ऑन ग्रोइंग. सो इट इज़ अ डायनामिक सिस्टम. नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंट, सिमिलर टू होलिस्टिक परस्पेक्टिव ओनली. जो एलिमेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, एयर, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, सब इंटरलिंक्ड है. मतलब अगर एयर नहीं होगी तो ह्यूमन सांस नहीं ले पाएगा. मतलब एयर अगर ज़रूरी है तो उतनी ही वाटर भी ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए. तो बेसिकली दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर.
नेक्स्ट इज़ इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसमें बेसिकली हमारा सब आ जाता है, एटमॉस्फेयर, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, नेचुरल साइकिल, कार्बन, वाटर साइकिल जो हम पढ़ते हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सारे जो होते हैं एनवायरनमेंट का ही पार्ट होता है। ओके, नाउ अगर हमारा क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, ये हमें सस्टेन करती है हमारी लाइफ को। सर्वाइवल, एयर वाटर नहीं होगा तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल बैलेंस, इट सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी, एक बैलेंस मेंटेन करके रखती है कि अगर जितने एनिमल्स हैं उतने ही ह्यूमंस भी होने चाहिए टू मेंटेन बैलेंस। अगर सारे एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास बहुत इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा पूरे इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक रिसोर्स। इन्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट, मिनरल्स, वाटर बॉडीज़ बहुत, रिवर्स जो होती है, दे आर ऑल्सो एन इकोनॉमिक रिसोर्स बिकॉज डैम्स बनते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, सोलर एनर्जीज देयर। नेक्स्ट इज़ कल्चरल वैल्यू, लाइक वेरियस सेक्रेड हेरिटेज साइट्स आर देयर, लैंडस्केप्स आर देयर, जो सीनिक ब्यूटी हम कहते हैं, दैट इज़ हिल स्टेशन, वट इज़ दैट इज़ एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट रेगुलेशन, जो ट्रीज़, ओशंस होते हैं वो हमारा टेम्परेचर और वेदर मेंटेन करते हैं। अगर सारे ट्रीज, सारी ग्रीनरी ख़त्म हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। तो बेसिकली क्लाइमेट को रेगुलेट करता है हमारा जो इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट में हमारे ये सारे ट्रीज़, वाटर बॉडीज़, ओशन, सारे कॉम्पोनेंट्स आते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट वी कैन say. Now moving ahead with the legal and philosophical concept in environment, these are the important नहीं है but we can just read with, that's public trust doctrine। हमने पहले पढ़ा भी होता है ये कि द इन्वायरमेंट इज़ हेल्ड इन ट्रस्ट बाय द स्टेट फॉर पब्लिक यूज़ एंड कैन नॉट बी प्राइवेटाइज और डिग्रेडेड। इसका हिंदी भाषा में सिंपल मीनिंग ये है कि जो इन्वायरमेंट है वो पब्लिक का ट्रस्ट है, मतलब इन्वायरमेंट सिर्फ पब्लिक की प्रॉपर्टी है। कोई प्राइवेट अपना इंडिविजुअल आकर ये नहीं बोल सकता कि ये फॉरेस्ट मेरा है, अपने फॉरेस्ट पे पैसे देकर वो हक नहीं जमा सकता, क्योंकि वो एक पब्लिक, एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सबके लिए, इट इज़ यूज फॉर एवरीवन। ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक होता है उसके अंदर। इसकी बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट है, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। इस केस में स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसी में ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। एक बार इसकी जजमेंट रीड ज़रूर करना। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। इसमें एक ब्रुंटलैंड रिपोर्ट आई थी जिसमें सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में बताया गया था। इसका मीनिंग होता है कि आज की जनरेशन को उतना फुलफ़िल करना नीड्स, ताकि आने वाली जनरेशन की नीड्स पे हैम्पर ना पड़े। मतलब आज हम रिसोर्सेज को थोड़ा बचा लें ताकि आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज कम ना पड़े, नहीं तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सो द प्रिवेंटिव एक्शन शुड बी टेकन टू अवॉइड इन्वायरमेंटल हार्म। इसका सिंपल मीनिंग है कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एनर्जी रिसोर्स ले रहे हैं इन्वायरमेंट से तो हम उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए हमें उसको। फॉर एग्जांपल इसका एक बहुत फेमस केस है बिलौर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें हमें बताया गया था प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है, कि हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। लाइक अगर हम हार्म कर रहे हैं, अगर हम एक्सप्लॉइट करते हैं रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, माइंस, फॉरेस्ट, सो बेसिकली हमें उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी मेजर्स लेने चाहिए। नेक्स्ट इज़ पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इट इज़ अ वेरी फेमस प्रिंसिपल जो हमारा केस में आया था इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया था जो भी रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन करने के लिए उनको पैसे पे करने पड़ेंगे, उनको जो कॉस्ट है उसको साफ़ करने की, पोल्यूशन को हटाने की और पोल्यूशन को बियर करने की, वो पे करनी पड़ेगी। मतलब अगर आज मैंने एयर पोल्यूशन फैलाया अपनी गाड़ी से तो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के हिसाब से मुझे उसके पैसे पे करने पड़ेंगे, और जो उसने इन्वायरमेंट में हार्म कॉज किया है उसकी साफ़ सफाई के और उसके लिए कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कम्स अप द टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है, क्लाइमेट, जोग्राफिकल फीचर, जोग्राफिकल फीचर मतलब लाइक हिल्स, माउंटेन्स, रेंजेस। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, फ्लोरा एंड फौना। बायोलॉजिकल मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट बेसिकली ट्रीज जो होते हैं। नेक्स्ट इज सोशल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड लाइक अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइग्रेशन, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ रही है। सोशल, सोसाइटी में चेंज आ रहा है ना, उसको कहते हैं हम सोशल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि हम उनसे रिसोर्सेज निकाल सकें, हम उनसे डायमंड निकाल सकें, कोरल रीफ्स को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, दैट्स बेसिकली इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ऑल राइट, नाउ इशूज़ या फिर हम कह सकते हैं इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। पोल्यूशन,
डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो दैट्स ऑल। बाकी इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इंटरफेस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक द सेशन। इफ़ यू लाइक द सेशन, kindly like, subscribe and comment notes if you wish to get the notes from our channel. Thank you.